Hello friends, I am Shalabh Jain and today we will discuss the last poem of class 12th, Aunt Jennifer's Tigers, which has been composed by Adrian Cecil Rich. In this poem, Adrian Rich has highlighted the mental and physical trauma under which women of America during 19th century had to undergo. ये तो आपको मालूम ही है, इंडिया में भी, इन इंडिया ऑल्सो वीमेन हैड टू अंडरगो सो मैनी मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल trauma. In the same manner, during 19th century in America, because Adrienne Rich belongs to USA she belongs to America, she's from America, so she has highlighted the plight, the mental agony of women of America during 19th century. So what is the theme of the poem? Everyone wants freedom, everyone aspires liberty, but if the person is extremely exploited, tortured or dominated, the feelings of the person comes out in different forms. ग्लास तोड़ देंगे, वास तोड़ देंगे, मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा शो करते हैं कि अपना गुस्सा एक्सप्रेस करें, उसको फ्लश आउट करें. इन दिस पोम आंट जेनिफर हैज brought out her anger, her emotions, her sentiments by making the image of tigers. By making the image of tigers. अब उन्होंने टाइगर ही क्यों बनाए? Because Aunt Jennifer wanted to be like tiger. She wanted to be like tiger. Tigers are confident creature, full of bravery, full of confidence. They do not afraid. Aunt Jennifer also wanted to be like the tigers, confident, unafraid, but she dared not. उनमें हिम्मत नहीं थी कि अपने हस्बैंड के अगेंस्ट अपनी वॉइस उठा सकें. इसलिए क्या हुआ? She just generated the image of tigers on a panel. पैनल आपको अभी मैं समझा दूंगा क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट द पोम. Aunt Jennifer. Before commencing the poem, I would like to tell you one thing. In the first stanza, Adrienne Rich has mentioned Aunt Jennifer, and in the last stanza, she has mentioned only Aunt, not Jennifer. In the first stanza, in the second stanza, the same language is over there, but in the last stanza, only word Aunt has been used. Why? Kyun? Now listen. Over here, Adrienne Rich has highlighted gradually Aunt Jennifer lost her identity. You know, name is your identity, and if you do not have name, only aunt, that means you are nothing. Over here, by writing in this way, Adrienne Rich ने क्या highlight किया? In America during 19th century, women had no value, no importance. Their name was not considered having any importance. आपने नाम सुना होगा मैरी एंड इवांस का. इफ़ यू फाइंड द बुक्स ऑफ मैरी एंड इवांस, तो आपको बुक में राइटर का नाम मिलेगा जॉर्ज इलियट, जबकि लिखी किसने है? मैरी एंड इवांस ने. इट मीन्स व्हेन मैरी एंड इवांस वांटेड टू गेट हर बुक्स पब्लिश्ड, तो वो पब्लिश नहीं हो पाई. रीज़न? इट वॉज रिटन बाय फीमेल. और व्हेन शी गेव द बुक्स नेम ऑफ हर हस्बैंड जॉर्ज, तो बुक्स पब्लिश हो गई. व्हाट इज दिस? दिस इज sick mentality of the male dominating society in America during those days. So this is the reason the last stanza is highlighting only aunt. That means now the name of Aunt Jennifer was vanished. Okay, let's start. Aunt Jennifer tigers. Why did Aunt Jennifer created tigers? Because she herself wanted to be like tigers. तो खुद भी टाइगर जैसी बनना चाहती थी. Prince. Prance means jump. Tigers were jumping across a screen, just like this is my screen, and I am writing something over here, marking the points over here. In the same manner, Aunt Jennifer created image of tigers at a panel.
नाउ विच टाइप ऑफ कलर शी अडॉप्टेड, कौन से कलर लिए? ब्राइट। ब्राइट क्यों लिए? बिकॉज ब्राइट कलर इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, ब्राइट कलर इज सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस। Aunt Jennifer wanted to be happy, she wanted to be confident, that's why she picked bright color. Topaz. Topaz means yellow plus brown. It is combination of yellow plus brown, the same skin color tigers have. Denizens means natives. World of green means forest. Aunt Jennifer created image of tigers. She made tigers exactly of the same color. सेम उसी कलर के टाइगर्स क्रिएट किए जैसा उनका बॉडी का स्किन का कलर होता है. और इन द बैकग्राउंड शी क्रिएटेड फॉरेस्ट. दे मीन्स टाइगर. डोंट अफ्रेड, डोंट फियर द men. Men means hunters beneath the tree. Whether there are hunters under the tree, चाहे पेड़ के नीचे हंटर्स ही क्यों ना खड़े हों, टाइगर्स नेवर अफ्रेड ऑफ देम. टाइगर को किसी से डर लगता ही नहीं है, बिकॉज दे आर बोल्ड क्रिएचर. आंट जेनिफर ऑल्सो वांटेड टू बी लाइक सेम. दे पेस. टाइगर्स मूव. पेस मीन्स मूव. स्लीक मीन्स स्टाइल. शिवेलरिक मीन्स ब्रेवरी. सर्टेनिटी मीन्स कॉन्फिडेंस. वेर एवर दे आर, चाहे कहीं भी हों, उनमें एक स्टाइल होता है चलने का. दे लुक वेरी एलिगेंट जब वो चलते हैं. शिवेलरिक, दे आर फुल ऑफ ब्रेवरी, बोल्डनेस एंड सर्टेनिटी. कॉन्फिडेंस है उन्हें, हम जहाँ रहेंगे कॉन्फिडेंस से रहेंगे, जो मर्जी करें. दिस वॉज द डिजायर ऑफ आंट जेनिफर ऑल्सो, दैट्स वाई शी क्रिएटेड इमेज ऑफ टाइगर्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Aunt Jennifer's fingers, letter F is repeating alliteration. Fluttering through her wools. Fluttering means shivering, कांपना. जनरली इंसान की जो बॉडी है फीवर से, बीमारी से, सर्दी से कांपती है. ओवर हियर आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर शिवरिंग. हालांकि उन्होंने वूल्स पहने हुए हैं. थ्रू हर वूल्स मीन्स दो शी वॉज वेयरिंग वूल, वूलन्स पहने हुए हैं, फिर क्यों कांप रही है? डर की वजह से. या फिर इंसान कांपता है डर से. यहाँ डर किस चीज का है? हस्बैंड का डर है, मेल डोमिनेशन का डर है, उसके टॉर्चर का डर है. तो आंट जेनिफर शी वॉज मेकिंग इमेज ऑफ टाइगर्स बट हर फिंगर्स वर फ्लटरिंग. और जो डिजाइन बना रही है टाइगर का, वो किससे बना रही है? आइवरी निडल. आइवरी मीन्स द निडल मेड ऑफ एलिफेंट टीथ. टस्क सुना होगा आपने, हाथी के दांत को कहा जाता है, उसको कहते हैं आइवरी. विच इज़ वेरी मच लाइट इन वेट. उसको भी खींचने में उसके हाथों में शिवरिंग हो रही है. दिस इज हाइट ऑफ फियर. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मैसिव वेट, हाइपरबोले. एज यू नो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, जब शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, रिंग्स एक्सचेंज होती हैं. रिंग्स आर सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ. अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो वो रिंग आपको हमेशा हैप्पीनेस देगी. जब भी आप उस रिंग को देखेंगे आपके अंदर एक खुशी फील होगी आपको, क्योंकि इट इज सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, बिगिनिंग ऑफ लव. लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर एक्सप्लॉयटेड है, आई मीन फुल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, फुल ऑफ डोमिनेशन, फुल ऑफ टॉर्चरस बिहेवियर, तो वही सिंबल ऑफ लव आपके लिए बन जाएगा सिंबल ऑफ टॉर्चर. और जब भी आप उस रिंग को देखेंगे, जब भी आप उस गिफ्ट को देखेंगे, आपको नेगेटिविटी आएगी. द सेम वॉज द मेंटल ट्रॉमा ऑफ आंट जेनिफर. आंट जेनिफर की फिंगर में जो अंकल की वेडिंग बैंड है, वेडिंग रिंग है, उसका वेट बहुत बढ़ गया है. मैसिव वेट का मतलब बिकॉज ऑफ डोमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ अंकल, द वेडिंग बैंड हैज बिकम ए सिंबल ऑफ ट्रॉमा. That's why her fingers were shivering. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. That wedding band had stuck. Aunt Jennifer की फिंगर में वो स्टक हो गई है, फंस गई है. इसका मतलब Aunt Jennifer has stuck
इन द मैट्रिमोनी ऑफ लाइफ, छोड़ नहीं सकती अपने हस्बैंड को, डोमिनेटिंग हस्बैंड को। शी वॉज ट्रैप्ड, इसलिए लिखा गया सिट्स हैवीली। नाउ द लास्ट स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड, so I have mentioned you why in the last stanza not Aunt Jennifer, only aunt has been highlighted because now she has lost her complete identity. So when aunt will die, when Aunt Jennifer will die, her terrified hands, terrified hands, यहाँ पर terrified hand क्यों बोला गया? यह है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। बॉडी पूरी टेरिफाइड है, लेकिन पोएट ने सिर्फ हैंड को यूज किया क्योंकि फिंगर में रिंग है, इसलिए हैंड वर्ड यूज किया। और आपको भी हमने प्रीवियस स्टेंजा में क्या बताया, हर फिंगर्स वर शिवरिंग। वाई द फिंगर्स वर शिवरिंग? बिकॉज ऑफ द वेडिंग बैंड। तो व्हेन आंट जेनिफर विल डाई, इवन आफ्टर हर डेथ हर हैंड विल टेरिफाई, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब होता है डिफिकल्टीज, कॉम्प्लिकेशंस। शी वॉज मास्टर्ड बाय, इट मीन्स आपने पास सुनी होगी कि डेथ मेक्स ए पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स, ऑल द ट्रॉमाज। भाई मौत का मतलब क्या है? फ्रीडम। कोई पर्सन कितना भी एक्सप्लॉइटेड हो, कितना भी परेशान हो बॉडी से, लाइफ से, किसी चीज़ से भी, डेथ मेक्स द पर्सन फ्री। लेकिन यहाँ एड्रिन रिच हैज़ हाईलाइटेड द मेंटल एगनी ऑफ आंट जेनिफर इन एग्जैजरेटेड मैनर, कि मरने के बाद भी इवन आफ्टर हर डेथ शी विल नॉट बी एबल टू कम आउट फ्रॉम हर फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। जस्ट इन ऑर्डर टू शो द हाइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने ये लाइन लिखी है कि इवन आफ्टर हर डेथ शी विल नॉट बी कम आउट फ्रॉम द रिंग्ड, रिंग्स मीन्स कॉयल्स, जो कि आंट जेनिफर के चारों तरफ हैं, वो उसमें फंसी रहेगी मरने के बाद भी। तो इट मीन्स इवन डेथ विल नॉट लिबरेट आंट जेनिफर। और टाइगर्स जो उसने बनाए हैं पैनल के ऊपर, शी मेड गो ऑन प्रेंसिंग। प्रेंसिंग का मतलब होता है जंपिंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड। इट मीन्स ओवर हियर एड्रिन रिच, हु वॉज ऑलवेज अ फेमिनिस्ट, शी हैज़ क्रिटिसाइज्ड मेल्स ओवर हियर, कि जिसको आंट जेनिफर ने क्रिएट किया, दे विल नॉट बॉदर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि देयर क्रिएटर इज नो मोर। वो अपनी नेचुरल लाइफ जिएंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, कॉन्फिडेंस के साथ, प्राउड के साथ और बिना किसी डर के साथ वो लाइफ को नेचुरली जीते रहेंगे। क्या कहा यहाँ पर आंट जेनिफर ने कि जिसको जो क्रिएटर है, दैट मीन्स आंट जेनिफर, उनकी डेथ का भी टाइगर्स के ऊपर असर नहीं होगा। टाइगर्स यहाँ पर कौन है या किसको शो कर रहे हैं? मेल सोसाइटी को। तो इट मीन्स मेल्स आर ऑलवेज सेल्फिश एंड डोमिनेटिंग एंड अनकेयरिंग अकॉर्डिंग टू एड्रिन रिच। दैट्स वाई दे विल रिमेन नेचुरल एंड न्यूट्रल इवन आफ्टर डेथ ऑफ देयर क्रिएटर। गॉट इट फ्रेंड्स? कोई शक? आप इस पोम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। बाय बाय।